Hello students, so today I am here with you again from the same chapter, that is formation of bond. We were discussing about ionic and covalent bond, and it's very clear. I always start with this only, कि when you talk about an ionic bond, in ionic bond what do we find? An electron is transferred from one atom to another. Atom which releases electron gets a positive charge, and atom which gains the electron gets a negative charge. This is ionic bond. And if we talk about covalent bond, there is sharing of electrons. There is sharing of electron between the two atoms. Like fluorine, two atoms of fluorine. Now they share, both the fluorine atoms share one electron each, and this results in the formation of, since it is mutual sharing of electron, it results in the formation of a covalent bond. So now what is the topic today? No doubt in ionic compound there is transfer of electron. One atom gets a positive charge, other atom gets a negative charge, and when you talk about one atom gets positive, other atom gets negative charge, it results in the formation of an ionic compound. And it seems, it looks like that, ये ऐसा लगता है कि जब आप एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करेंगे, when we are going to talk about a covalent molecule where there is no transfer of electron, so we don't find the molecule will have some charges. लगता बिल्कुल ऐसे ही है कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एटम को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए. यहाँ क्या लगता है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, सो चार्जेस डेवलप नहीं होंगे. लेकिन बच्चों, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, देयर इज नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयनिक और देयर इज नो बॉन्ड व्हिच इज परफेक्टली कोवेलेंट. मींस आई मीन टू से, in other sense you can say that some ionic compounds can have some covalent character, and similarly some covalent molecules can have some ionic character also, and this is what we call polar and non-polar covalent bonds. When we say polar covalent bonds, it means that these are the molecules which develop, or the molecules in which the constituent atoms develop certain charges, slight charges, and this is called polar covalent bond. And when the molecule does not develop any charge, then it is called as a non-polar covalent bond. So we have two type of, you can say we have two type of molecules, covalent molecules. One we will talk about polar, other we will talk about non-polar. I just mean to say, I just concise the topic, और मैं आपको ये बताने जा रहा हूं आपको आज कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल में चार्जेस डेवलप नहीं होते, ऐसा मानना गलत है. In some of the molecules some charges are developed, and when in the molecule charges are developed, we call them as polar molecules. We consider them as polar covalent molecules. Remember everyone. तो मैं आपसे polar and non-polar covalent molecules की बात करने जा रहा हूं. polar कैसे? एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे. Like suppose किया आपके पास HCl एक मॉलिक्यूल लिया, and in this HCl molecule we all know chlorine has 7 electrons in its outermost shell. Hydrogen has 1 electron in its outermost shell, and they mutually share 1 electron each, and this results in the formation of HCl. Hydrogen complete its duplet, chlorine complete its octet. अब एक HCl मॉलिक्यूल बना. अब इन मॉलिक्यूल्स में जिसमें एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और जब शेयर करेगा, एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, तो एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं. every atom has a tendency of electronegativity. Now when I say every atom has a tendency
of electronegativity. What is the meaning of electronegativity? Electronegativity means every atom has tendency to attract the shared pair of electron towards itself. हर एटम की अपने आप में एक टेंडेंसी होती है, हर एटम फोर्स लगाता है उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करने का, अपनी तरफ खींचने का, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। आपके पास एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सेम हियर, इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में this is a shared electron pair, and now this shared electron pair is attracted by chlorine as well as by hydrogen because of electronegativity. Now to make it very clear, hydrogen and chlorine are different atoms, and when they are different atoms, they will have different value of electronegativity. Means one will have more power to attract the shared electron pair, other will have less power to attract the shared pair of electron. On this account, what do we find? I repeat, इस HCl मॉलिक्यूल में दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, सेम नहीं है। और जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, हमने ऑब्जर्व किया कि क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, and when chlorine has more electronegativity, what the chlorine do? Chlorine attract this shared electron pair towards itself. It is slightly shifted towards chlorine. मैंने ये नहीं कहा कि क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लिया, नो, मैंने बोला chlorine slightly attracted these electron pairs towards itself. It means that electron pairs slightly shifted towards chlorine. As a result, जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्लोरीन विल गेट स्लाइट नेगेटिव चार्ज, partial negative charge, and similarly hydrogen will get slight positive charge. Now in this molecule, what do we find? Since slight negative charge and slight positive charge are developed, slight negative and slight positive charge are produced. This results in the development of partial ionic character in this molecule, and as a result, now since two opposite charged ends are developed, so this is called a polar molecule. It is also called a dipole. आप इसको dipole भी बुला सकते हैं because it has two poles, dipole of opposite charges. This is polar molecule I am talking. This is about the polar molecule I am talking, and when I am talking about this polar molecule, electron is attracted towards one of the atom. That atom gets like negative charge, other atom gets like positive charge. Remember, so this is the way. What do we find? कि यहाँ आपके पास ऐसे डेवलप होगा। अब एक एग्जांपल और देखिए, let us consider, मैं आपसे फ्लोरीन एटम से फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है एग्जाम में भी क्वेश्चन था, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो हम क्या नोटिस करते हैं, इन दिस फ्लोरीन मॉलिक्यूल, these are two fluorine atoms, these are two fluorine atoms, ये दो फ्लोरीन एटम्स हैं, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, ये लाइक दिस, दे शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच, ऑक्टेट दोनों फ्लोरीन का कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां सिचुएशन क्या बनेगी, because we have two fluorine atoms, they attract the electron pair towards itself. दोनों फ्लोरीन एटम हैं, दोनों सेम एटम हैं, और जब दोनों सेम एटम हैं, दोनों ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करनी है। एंड सिंस बोथ द एटम्स आर सेम, बोथ एटम्स अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर। ये फ्लोरीन भी अट्रैक्ट करेगा, उतनी फोर्स से ये फ्लोरीन भी अट्रैक्ट करेगा, और जब दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्सेस लगेंगी, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स एनी ऑफ द एटम। इसका मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बना,
बट स्टिल क्योंकि दोनों एटम सेम हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन इन द सेंटर, इलेक्ट्रॉन इज नॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स एनी ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। दैट्स व्हाई दे डू नॉट गेट एनी चार्जेस एंड दिस इज कॉल्ड नॉन polar covalent bond. What you will call non-polar covalent bond or non-polar covalent molecules. तो ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इसको देख के चीज क्लियर होती है क्या, कि जब आपके पास हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल होगा, हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल मींस डिफरेंट एटम्स, ए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट एटम्स, उस एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होगी, राइट, मॉलिक्यूल पोलर बनेगा क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, और इस मॉलिक्यूल में क्योंकि दोनों एटम्स सेम हैं तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बीच में कहीं बीच में रहेगा, इट विल नॉट शिफ्ट, तो हम बोलेंगे होमोएटमिक मॉलिक्यूल। तो एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि जो भी होमोएटमिक मॉलिक्यूल हैं दे आर नॉन पोलर, जितने हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल होंगे दे विल बी पोलर। एक जनरल रूल डिसाइड हो गया कि व्हेनेवर यू गेट ए हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल this is polar, and when you get a homoatomic molecule this is non polar. अब जो पोलैरिटी आपके पास आएगी, when we will talk about this polarity, पोलर बॉन्ड समझ में आ गया। अब ये कितना पोलर है, हाउ मच पोलर द मॉलिक्यूल इज, इसका भी मेजरमेंट करने का तरीका होता है, और इसको मेजरमेंट करने के लिए हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, हम इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में मेजर करते हैं। वी ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। सपोज किया, जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल है, फाइन, इस हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल में सिचुएशन क्या बनी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज मूव टुवर्ड्स बी, सो बी गेट्स लाइक नेगेटिव चार्ज एंड ए गेट्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। और एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, ये दोनों एटम्स पे जो चार्जेस हैं दे आर ऑफ अपोजिट नेचर, वन इज ऑफ पॉजिटिव नेचर एंड अदर इज ऑफ नेगेटिव नेचर, बट क्वांटिटी ऑफ चार्जेस विल बी सेम। जितना पॉजिटिव चार्ज एटम ए पर डेवलप होगा उतना नेगेटिव चार्ज एटम बी पर डेवलप होगा, सो चार्जेस, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस आर सेम, ओनली नेचर आर अपोजिट। और ये जो डाइपोल बना, इस डाइपोल में कितना पोलैरिटी है इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द, नाउ जस्ट टेलिंग यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, दिस इज फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज multiplied by distance of separation of two charges. Let this is the distance of separation of two charges. So this is the symbol. This is called mu. So this dipole moment is equals to the product of multiply of quantity of charge and the distance of separation of two charges. जैसे बोल रहा हूं वैसे आप नोट करिएगा। Dipole moment is equals to product of multiply of charge and distance of separation between two charges. This is called dipole moment. हमें सिर्फ चार्ज चाहिए, नेचर नहीं चाहिए। अभी I just told दोनों की चार्जेस की क्वांटिटी सेम होगी, नेचर अपोजिट होगा, तो हमें चार्ज चाहिए। This is called dipole moment. और दूसरी बात लगे हाथ में आपको बता दूं, this dipole moment is a vector quantity. This dipole moment is a vector quantity. Vector quantity आप सब जानते हो, जिसकी डायरेक्शन होती है, and the value of dipole moment is always directed from positive end to negative end. From positive end to negative end dipole moment हमेशा वैसे ही डायरेक्टेड। तो मैंने बोला आपको कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ये जो पोलर ये नॉन पोलर बॉन्ड की प्रॉपर्टी है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं। तो जो हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट होगा, और जो होमोएटमिक होंगे वो नॉन पोलर होंगे। और जो पोलर है वो कितना पोलर है, वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। और जब मैंने आपसे बोला डायपोल मोमेंट के टर्म्स में मेजर होगा, तो इसका फार्मूला बैठता है mu is equals to q into d, q stands for charge and d stands for time। ये आपके पास होता है। अब मैं जो आपसे आपके पास जो आगे डिस्कस करने वाला हूं, what I am talking with you, what next topic I am just going to talk with you। मैंने आपसे बोला मॉलिक्यूल पोलर है, मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट बनेगा, गुड। लेकिन एक चीज, कौन सा, हेटेरोएटमिक। लेकिन एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई मॉलिक्यूल, हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल जब डाइएटमिक है, आई रिपीट, हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल अगर डाइएटमिक है, इट विल ऑलवेज बी पोलर। अगर हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल डाइपोलर है, डाइएटमिक है, तो वो ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी अ पोलर मॉलिक्यूल। एक हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल, मैंने HCl लिखा, ये मॉलिक्यूल हेटेरोएटमिक है। ये अगर आपके पास डाइएटमिक है तो इट विल ऑलवेज बी पोलर। लाइक मैंने बोला HCl, लाइक मैंने बोला HF, लाइक मैंने बोला CO, ये सब पोलर होंगे। लेकिन अगर हम पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स कैन बी पोलर और कैन नॉट बी पोलर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये सब मॉलिक्यूल की शेप पर डिपेंड करेगा, नथिंग एल्स। इट ऑल डिपेंड्स ऑन शेप। डाइएटमिक, आई रिपीट, you can note it down. Heteroatomic means different atom. Diatomic means two atoms. Molecules are always polar. But heteroatomic, polyatomic can be polar or non-polar. It depends on its structure. ये सिर्फ और सिर्फ इन molecules के structure पर depend करता है. Like for example, I take the example of H2O. This is H2O and I take the example of CO2 as well. I just take the example of CO2 molecule. अब आपसे कोई पूछे ये दोनों हेटेरोएटमिक है, आप कहेंगे यस सर। कोई आपसे पूछे इसकी एटमिसिटी क्या है, आप बोलेंगे 3 है सर, क्योंकि 3 एटम्स हैं। हम पूछेंगे इसकी एटमिसिटी क्या है, आप बोलेंगे 3 सर, क्योंकि इसमें भी 3 एटम्स हैं। राइट। अब आपने क्या नोटिस किया कि CO2 ये भी हेटेरोएटमिक, H2O ये भी हेटेरोएटमिक, तो दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर होनी चाहिए। हमने कहा नहीं, हमने बोला इस CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 आता है और इस H2O का डाइपोल मोमेंट 1.84D। डिवाई इसकी यूनिट होती है, आई फॉरगॉट, डिवाई इज इट्स यूनिट। अब आप कहेंगे सर दोनों हेटेरोएटमिक, दोनों डाइएटमिक, फिर इनके डाइपोल मोमेंट में फर्क क्यों है? तो हम बोलेंगे इसके डाइपोल मोमेंट में फर्क का कारण है इनकी शेप्स। इसका मतलब पॉलीएटमिक पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, हेटेरोएटमिक है फिर भी वो नॉन पोलर हो सकता है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की शेप पर। जैसे हमने कहा इस CO2 मॉलिक्यूल की शेप लीनियर होती है। कैसी शेप होती है? लीनियर। लीनियर मींस दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दिस इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब हम क्या बोलेंगे कि बेटा इन दोनों बॉन्ड्स में अगर आप ऑब्जर्व करें, दिस CO बॉन्ड इज पोलर। अब बताओ यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? यस, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अब ध्यान से देखना, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड नंबर 1 का डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। इसका डाइपोल, क्योंकि मैंने बोला डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस बॉन्ड नंबर 1 का जो डाइपोल मोमेंट है इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। Similarly, for this bond number 2, it has slight negative charge again, or automatically this oxygen will also get slight negative charge. इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा। और मैंने आपसे बोला
क्योंकि क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब आप इनका सम देखना चाहेंगे आपको इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। और इस बेस पर अगर आप ऑब्जर्व करें, इस बेस पर अगर आप नोटिस करें, इस CO का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इस CO बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दोनों के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन अपोजिट हैं तो जब आप इनको ऐड करेंगे व्हाट यू विल गेट, you will get a resultant dipole moment of 0, क्योंकि वेक्टर एडिशन करना है। और जब वेक्टर एडिशन करना है तो आपके पास सिचुएशन क्या रहेगी, इसका साइन और इसका साइन अपोजिट और दोनों ऐड होकर के टोटल डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। इन केस ऑफ H2O, अगर आप इस H2O मॉलिक्यूल की शेप की बात करते हैं, इसमें क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, इसकी शेप बेंड शेप होती है। और जब मैंने बोला इसकी शेप बेंड शेप होती है, तो बेंड शेप होने से अब आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, सेम यहां हाइड्रोजन की तुलना में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। और जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, स्लाइट नेगेटिव, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज, स्लाइट पॉजिटिव। ओके, अब हर इंडिविजुअल बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट बनेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इस बॉन्ड के भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताइए, जब दोनों के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी, आप फिजिक्स में पढ़ते हो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, जब दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन, जब दोनों के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ है, तो दे विल एड अप एंड यू विल गेट ए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट में एक और चीज हेल्प करेगा, वो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका डाइपोल मोमेंट भी इसमें ऐड हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बैठेगा 1.85 d। रिमेंबर, यहां क्या बना, इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स आएंगे, उन पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स में अगर आपने डाइपोल मोमेंट देखना है तो रिमेंबर हर इंडिविजुअल बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा वो मॉलिक्यूल की शेप पर डिपेंड करेगा। जैसे CO2 में हर CO बॉन्ड का अपना डाइपोल मोमेंट था, लेकिन रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आया। Why? Because they are in opposite direction. When they are added, we get 0 value. While in H2O, हर individual bond का dipole moment था, and they are in same direction. They are added. Plus, they are added by dipole moment due to orbital. This is called orbital moment because of lone pair of electron. That's why this H2O will have a total dipole moment. तो means dipole moment shape पर depend करता है। Few more examples we will discuss in next video. Thank you.